فرما بردار یہ فارسی زبان کا مرکب لفظ ہے اور اس کا تلفظ ہے فرما بردار۔ 18ویں زبور کی 44ویں آیت میں یہ آتا ہے اور زبور کی کتاب میں یہ فقط ایک بار آیا ہے۔ اس کا مترادف لفظ ہے مطیع ہونا اور یہ 43ویں آیت میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، تابع ہونا۔ بردار نکلا ہے برداشتن سے۔ برداشتن اس کا مصدر ہے۔ برداشتن کا مطلب ہے اٹھانا، جیسے علم بردار جھنڈا اٹھانے والا، بار بردار گاڑی وہ گاڑی جس پر بوجھ لادا ہوا ہے، جو بوجھ اٹھا رہی ہے۔ ناز بردار، سلا بردار، ڈنڈا بردار جلوس۔ سلا کا مطلب ہوتا ہے جنگی ہتھیار اور اسی سے بنا ہے اسلحہ۔ سلا بردار جنگی ہتھیار اٹھانے والا۔ سپر بردار اور یہیں سے ہے برداشت کرنا۔ دوسرا لفظ یہ ہندی زبان کا ہے، دعویٰ کرنا، دعویٰ کرنا یا دعویٰ بولنا، دعویٰ مارنا، یہ تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ 18ویں زبور کی 29ویں آیت میں یہ آتا ہے اور زبور کی کتاب میں صرف ایک بار آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، جیسے یشوا کی کتاب کے 10ویں باب کی 5ویں آیت میں ہے چڑھائی کرنا۔ دعویٰ کرنا، چڑھائی کرنا، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اگلا لفظ ہے 21ویں زبور کی 3 آیت میں آتا پیش قدمی کرنا۔ بائبل میں یہ صرف ایک دفعہ آیا ہے، پوری بائبل میں۔ اس کا مطلب ہے پہلے قدم بڑھانا، پہل کرنا۔ پیش کا مطلب ہے آگے، پہلے، قبل، اور اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ ہیں، جیسے ہے پیش گوئی، کسی واقعے سے پہلے ہی کہہ دینا۔ پیش خبری، پیش بینی، پہلے دیکھ لینا۔ پیش پیش، آگے آگے۔ پیش رو، آگے چلنے والا۔ پیش رفت، یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں، جیسے ہے پیش قدمی کرنا۔ 21ویں زبور کی 6 آیت میں یہ مرکب لفظ آتا ہے۔ اس کا تلفظ ہے خوش و خرم۔ خے کے بعد واو ہے اور واو خاموش رہے گی۔ خے کے اوپر پیش ہے، خے ملے گا آ کے شین کے ساتھ، یہ واو مادولہ ہے، یہاں واو کی آواز خاموش رہے گی۔ اس کا تلفظ ہوگا خوش اور آگے پھر واو ہے تو بنے گا خوش و خرم، رے کے اوپر تشدید ہے، اس کا تلفظ ہوگا خوش و خرم۔ اور زبور کی کتاب میں یہ کل 6 بار آتا ہے۔ فارسی زبان کے اس مرکب لفظ کا مطلب ہے خوش اور اس کا مترادف ہے شادمان، شادمانی۔ اور شادمان، شادمانی پوری بائبل میں 130 بار آئے ہیں۔ یہ خوش و خرم کا مترادف ہے۔ اگلا لفظ 21ویں زبور کی 8ویں آیت میں آتا ہے تنور۔ پرانے عہد نامے کے عبرانی متن میں یہ کل 15 بار آیا ہے اور کئی جگہوں پر اس کا ترجمہ آگ کی بٹی بھی کیا گیا ہے۔ عبرانی تلفظ ہے تنور، تنور۔ عربی اس کا تلفظ ہے تنور اور اردو میں اور پنجابی میں ہم کہتے ہیں تنور۔ یہ دلچسپ ہے کہ ہمارا عربی کا، اردو کا اور پنجابی کا لفظ حقیقت میں عبرانی سے آیا ہے اور تنور عبرانی لفظ ہے۔
और अंग्रेजी में इसके तर्जमे किए गए हैं ओवन, फर्नस। अगला लफ्ज ज़बूर 22 की हेडिंग है, उसमें ये लफ्ज आता है जा कनी। इसका तलफ़ुज़ है जा कनी। जान कनी बेशक लिखा है, मगर उर्दू में हम इसे जा कनी पढ़ते हैं नून गुन्ना के साथ। बाइबल के मतन में ये 3 बार आता है, ज़बूर की किताब में, अमसाल में और यसाया की किताब में। आगे हवाले लिखे हुए हैं। जान कनी का मतलब है जान निकलने की हालत, दम निकलने या दम टूटने की घड़ी। कनी निकला है कंदन से। फारसी जुबान में कंदन का मतलब होता है खोदना, खींचना। और इससे कई लफ्ज बने हैं, जैसे है कान कन, कान खोदने वाला, जहाँ से मादनियात निकलती हैं। कोह कन, पहाड़ खोदने वाला। मेरे मजदूर इस दौर के कोह कन। गोर कन, गोर का मतलब होता है कब्र। गोर कन, कब्र खोदने वाला। चाह कन, चाह कन राह चाह दर पेश। इसका मतलब है फारसी में जो किसी के लिए गड़ा या कुआं खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। चाह कन, कुआं खोदने वाला, गड़ा खोदने वाला। कंदा करना, ये भी इसी से बना है। कान कन, कोह कन, गोर कन, चाह कन, कंदा करना। ये 22वें ज़बूर का सुर है। इसका तलफ़ुज़ है अय्यलत हशखर। ये है इब्रानी के अल्फाज हैं। अय्यलत हशखर, अय्यलत हशखर। इसका मतलब है फज्र, सुबह सवेर की हरनी। कैथलिक तर्जमे में इसका खूबसूरत तर्जमा किया गया है आहुए फज्र। आहू फारसी जुबान में कहते हैं हरन को, और फज्र सुबह सवेर का वक्त, डॉन। और तड़का भी इसका मतलब है। इसका हरन के कई तलफ़ुज़ हैं। इसका तलफ़ुज़ हिरन भी है, और हरन भी इसका तलफ़ुज़ है। इब्रानी ज़ुबान में आयल का मतलब होता है नार हरन, और जब आगे हे लगता है तो ये बन जाता है मुअन्नस। अयला, मादा हरन, हरनी, ये है। जैसे अरबी ज़ुबान में भी जब आखिर में हे लगता है तो ये मुअन्नस बन जाता है। जैसे साजिद, आगे हे लगाएंगे तो बन जाएगा साजिदा। खालिद, ये मुज़क्कर है, और हे लगने से बन जाएगा मुअन्नस खालिदा। इसी तरह अय्यल जो है ये नर हरन है, और अय्यला ये मादा हरन है, हरनी। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, 42वें ज़बूर की पहली आयत। यहाँ हरनी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अय्यला। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। अरबी और उर्दू में सहर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है सुबह सवेर का वक्त, तड़का। और एक और लफ्ज़ मिलता जुलता है इससे, वो है सेहर। अगर सीन के नीचे जेर होगा तो इसका मतलब ये है जादू, सेहर, जादू। लेकिन ये है सहर। और कई लड़कियों के नाम भी सहर रखे गए हैं, और ये इब्रानी ज़ुबान में है शखर, तो उर्दू में है सहर। 22वें ज़बूर की 7वीं आयत में है, दूसरे ज़बूर की 7वीं आयत में है। और ये ज़बूर की किताब में फ़कत 2 बार लफ्ज़ आता है। इसका तलफ़ुज़ है मज़ह का उड़ाना, मज़ह का, मज़ह का, मज़ह का उड़ाना। जो लफ्ज़ इसके लिए इब्रानी में यहाँ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, ठट्ठा करना, हंसी उड़ाना।
मुंह चिढ़ाना, ये मतलब है यहाँ पर मुस्तमल। इब्रानी जुबान के लफ्ज के। अगला लफ्ज है 22वें ज़बूर की 12वीं आयत में सांड। ये हिंदी जुबान का लफ्ज है और ज़बूर की किताब में सिर्फ 2 बार आता है। सांड इस्तेमाल हुआ है जवान बैल के लिए, और अंग्रेजी जुबान में इसका तर्जमा किया गया है बुल, सांड। 22वें ज़बूर की 19वीं आयत में मुरक्कब लफ्ज आया है चारा साज, चारा साज। और ये ज़बूर की किताब में सिर्फ एक ही दफ़ा आता है। इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है चारा साज के लिए वो है अय्यालूत। अय्यालूत का मतलब है मुश्किल में मददगार, और इसका मतलब है ताकत। खुदा मेरा चारा साज है, खुदा मुश्किल में मेरा मददगार है, मेरी ताकत है, मेरा जोर है। ये है इसके मानी। हिंदी जुबान के लफ्ज चारा का मतलब है मदद, तदबीर, इलाज। और साज का मस्तर है साख्तन। साख्तन का मतलब होता है बनाना, करना। जैसे है तारीख साज, कारसाज, काम बनाने वाला। दवा साज, दवा साज इदारा, दवा बनाने वाला इदारा। साख्ता, बना हुआ। जैसे खुद साख्ता, खुद ही बना हुआ। 22वें ज़बूर की 13वीं आयत में है मुंह पसारना, पसारना, पसारा, पसारे, पसारना। पूरी बाइबल में ये 5 दफा आता है। और हिंदी जुबान का लफ्ज है पसारना, इसका मतलब है खोलना, फैलाना, दराज करना। मुंह पसारा, मुंह खोला। सना खां, इसका तलफ़ुज़ है खां, खां। सना का मतलब है हम्द, तारीफ, सिताइश करने वाला। सना खां, तारीफ करने वाला, हम्द करने वाला। फारसी जुबान का लफ्ज है सना। सना का मतलब है हम्द, तारीफ। और खां का मस्तर है खानदन। खानदन का मतलब होता है पढ़ना। जैसे निकाह खां, निकाह पढ़ने वाला। नौहा खां, नौहा पढ़ने वाला। उर्दू खां,
اردو پڑھنے والا۔ اس کا تلفظ ہے خاں، خے کے بعد واؤ خاموش ہے اور اسے کہتے ہیں واؤ مادولا۔ کلاس نمبر 8 کی ویڈیو دیکھیں، وہاں پر واؤ مادولا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، سکھایا گیا ہے۔ 22ویں زبور کی 23ویں آیت میں ہے تمجید کرنا، اور یہ زبور کی کتاب میں 22 بار آتا ہے۔ پوری بائبل میں یہ 87 بار آیا ہے۔ عبرانی میں اس کا مادہ ہے کاف بے دال، اور اس کا مطلب ہے خدا کی بڑائی کرنا، خدا کی بزرگی کرنا، خدا کی تعریف کرنا، خدا کی عزت کرنا، خدا کو جلال دینا۔ یہ ہیں اس کے معنی استعمال ہونے والے عبرانی مادے کے۔ عربی زبان میں اس کا مادہ ہے میم جیم دال، اور اس کا مطلب ہے تعظیم کرنا، تعریف کرنا۔ اسی خاندان کے الفاظ ہیں مجد، امجد، مجید، ماجد، ماجدہ، یہ اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ خواہاں، یہ بائبل میں آتا ہے 23 بار۔ اس کا مطلب ہے چاہنے والا، آرزو مند، طالب۔ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے، خروج کی کتاب میں آتا ہے۔ خواہاں کا مصدر ہے خواستن، خواستن کا مطلب ہے چاہنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ خواہاں، یہ بھی کلاس نمبر 8 کی ویڈیو دیکھنے سے واضح ہو جائے گا، جس میں واو مدولہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 25ویں زبور کی 16ویں آیت میں ہے بے کس اور مصیبت زدہ۔ بے کس کا مطلب ہے بے یارو مددگار، بے سہارا، اکیلا، محتاج۔ مصیبت زدہ کا مطلب ہے مصیبت کا مارا ہوا، مصیبت کا ستایا ہوا، اور اس کا مصدر ہے زدن۔ زدن کا مطلب ہے مارنا، جیسے ہے آفت زدہ، آفت کا مارا ہوا، سیلاب زدہ، سیلاب کا مارا ہوا، حیرت زدہ، حیرت کا مارا ہوا۔ 25ویں زبور کی 15ویں آیت میں ہے دام۔ بائبل میں یہ کل 14 بار آتا ہے۔ دام فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے جال جو شکار کو پھانسنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ دام، اس کا مطلب ہے پھندا، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے نیٹ۔ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے قیمت، مول، رقم۔ بائبل میں یہ آتا ہے 23 بار۔ پہلا دام ہے فارسی زبان کا، جس کا مطلب ہے جال یا پھندا، اور یہ دوسرا دام ہے ہندی زبان کا، جس کا مطلب ہے قیمت، مول، رقم۔ پیدائش کی کتاب میں آتا ہے میں تجھے کھیت کا دام دوں گا، کھیت کی قیمت، کھیت کا مول، کھیت کی رقم۔ تو یہ پہلا دام ہے فارسی کا اور دوسرا دام ہے ہندی کا۔ دونوں کے معنوں میں فرق ہے، بے شک پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، مگر ان کے معنوں میں فرق ہے۔ 25ویں زبور کی 18ویں آیت میں یہ لفظ آتا ہے جاں فشانی کرنا۔ اس کا تلفظ ہے جاں فشانی، اور پوری بائبل میں یہ آتا ہے 18 بار، اور زبور کی کتاب میں صرف ایک بار ہی آیا ہے 25ویں زبور میں۔ اس کا مطلب ہے جان دے دینا، سخت محنت کرنا۔
सख्त कोशिश करना। फिशां का मस्दर है फारसी में अफशांदन। अफशांदन का मतलब है बखेरना। जैसे है नूर अफशां, नूर बखेरने वाला। गुल फिशानी करना, फूल बखेरना। शोला अफशां, आतिश फिशां पहाड़। और यहीं से है इफ्शाए राज करना, राज को फाश कर देना, राज को खोल देना। 26वें ज़बूर की छठी आयत में है तवाफ करना। और 48वें ज़बूर की 12वीं आयत में भी ये लफ्ज़ आता है। और पूरी बाइबल में ये सिर्फ 2 बार लफ्ज़ आता है, तवाफ करना। इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है किसी चीज़ के गिर्द फिरना, चक्कर लगाना, उसे घेरे में ले लेना। ये मानी है इब्रानी लफ्ज़ के जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तवाफ करना एक इस्लामी इस्तिलाह है। और और भी कई एक इस्तिलाहें अल्फाज आए हैं जो इस तरह के हैं, जैसे है नमाज। मत्ती 23वें बाब की 14वीं आयत में आता है नमाज। इसी तरह कुरिन्थियों के नाम पहले खत में वही लफ्ज़ आया है, वही। और इसी तरह सफनिया के सहीफे के दूसरे बाब की दूसरी आयत में आता है तकदीर इलाही। ये चंद एक अल्फाज हैं, इस्तिलाहात हैं जो इस्लामी हैं, मगर उर्दू तर्जुमे में मौजूद है। मेरी लिखी हुई किताब है वजाहत अल्फाज। उसके आखिर में मेरा एक मजमून है। अगर ये किताब आपके हाथ लगे तो ये मजमून ज़रूर पढ़िए। और उसका नाम है किताब मुक़द्दस के उर्दू तर्जमे पर इस्लामी असरात। इसमें बड़ी वजाहत के साथ, तफसील के साथ बताया गया है कि हमारे उर्दू तर्जमे पर इस्लामी असरात किस तौर से हैं। 27वें बाब की तीसरी आयत में लफ्ज़ है खैमा जन होना। यह ज़बूर की किताब में 3 बार आता है। इसका मतलब है खैमा लगाना, तंबू गाड़ना, फौज, लश्कर या कबीले का खैमे लगाकर कियाम करना, खैमा जन होना। 26वें ज़बूर की पहली आयत में आता है लग्जिश खाना। इसका तलफ़ुज़ है लग्जिश। और ये ज़बूर की किताब में 3 बार आता है। इसका मतलब है फिसल जाना, लड़खड़ा जाना, खता करना। और लग्जिश का मस्दर है लग्जीदन। लग्जीदन का मतलब है फिसलना, ठोकर खाना, लग्जिश खाना। 27वें ज़बूर की चौथी आयत में लफ्ज़ आता है इस्तिफसार करना। इस्तिफसार ज़बूर की किताब में ये सिर्फ 1 बार आता है। और यहाँ पर जो इब्रानी फेल इस्तेमाल हुआ है वो है बाकश। और बाकश पूरी बाइबल में 225 बार आया है इब्रानी मतन में। और इसके मुख्तलिफ तराजम किए गए हैं। लफ्ज़ एक ही है मगर मुख्तलिफ जगहों पर इसके तर्जमे फ़र्क है। कभी इसका तर्जमा किया गया है पूछना, कभी दरियाफ्त करना, कभी ढूंढना, कभी तलाश करना, कभी गौर करना, कभी तलब करना, कभी मांगना, कभी चाहना, कभी ख्वाहा होना। अरबी जुबान में इसका मादा है फे सीन रे। और इसका मतलब है वाज़े करना, खोलना, जाहिर करना। इसी मादे से बनते हैं लफ्ज़ इस्तिफसार और तफसीर, मुफस्सिर इसी ख़ानदान के अल्फाज हैं। और इसका तलफ़ुज़ है इस्तिफसार, इस्तिफसार। और इसी वज़न पर और भी अल्फाज हैं, जैसे है इस्तिकबाल, इस्तिगफार, इस्तिकलाल। 28वें ज़बूर की 8वीं आयत में है
ममसू। और ओ, एक और लफ्ज आता है कला। ममसू आया है जबूर की किताब में 9 बार और कला आया है 7 बार। पहले का तलफ्फुज है ममसू। ममसू का मतलब है मसा किया गया। और दूसरा लफ्ज है कला। इसका दुरुस्त तलफ्फुज कला है। कला का मतलब होता है महफूज, पनाह गाह। 35वें जबूर की दूसरी आयत में है ढाल और सिपर। ढाल और सिपर, इसका तलफ्फुज है सिपर। ढाल जबूर की किताब में 3 बार आता है और सिपर आता है 19 बार। ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं एक दूसरे के। बेशक इब्रानी जुबान में इन दोनों के लिए फ़र्क फ़र्क अल्फाज आए हैं, मगर उर्दू तर्जमाकारों ने इनका तर्जमा ढाल और सिपर किया है, जो मुतरादिफ अल्फाज हैं एक दूसरे के। ढाल का मतलब है आड़, मुहाफिज। और सिपर का मतलब भी यही है। इसे अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है शील्ड। और ये 2 तरह की होती थी, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 29वां ज़बूर, उसकी आयत है तीसरी। खुदाई जुल जलाल, इसका मतलब है जलाल वाला खुदा। आपने देखा कि खुदा के आगे छोटी याय है। इसका तलफ्फुज होगा खुदाई जुल जलाल। हम आजकल बड़ी याय के साथ लिखते हैं खुदाए जुल जलाल। और अगर इसे फ़ारसी अंदाज में लें, क्योंकि खुदा जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और फ़ारसी में भी बड़ी याय नहीं होती, छोटी याय होती है। तो यहाँ छोटी याय इस्तेमाल की गई है। खुदाई जुल जलाल, ये है इसका तलफ्फुज़। अगर आप चाहें तो इसे खुदाए जुल जलाल भी पढ़ सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। और इसका मतलब है जलाल वाला खुदा। जू का मतलब होता है वाला, मालिक, आका, साहिब। इसका मुतरादिफ है जी। जैसे है जी शान, शान वाला। जी कद्र, कद्र वाला। तो जू और जी ये एक दूसरे के अरबी ज़ुबान में मुतरादिफ है। बाइबल में जुल जलाल 5 बार आया है, फ़र्क फ़र्क मकामात पर। ये चंद एक अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं जू के साथ। जैसे है जुल्फ़िकार, जुल इक़्तिदार, जुल इंतकाम, जुल एहतराम। 31वां ज़बूर, आयत तीसरी। रहबर, रहनुमा, इसका ये तलफ्फुज होगा रहबर, रहनुमा। और पूरी शक्ल में है राबर, रानुमा। रहबर का मतलब है राह पर ले जाने वाला, हादी, पेशवा, लीडर। बार निकला है बुर्दन से। बुर्दन इसका मस्दर है, इसका मतलब है ले जाना, उठाना। रहनुमा, इसका मतलब है राह दिखाने वाला, हादी, लीडर। और इसका मस्दर है नमूदन। नमूदन का मतलब होता है दिखाना। और इसी से लफ्ज निकले हैं नुमाइश, दिखावा। खुशनमू, अच्छा दिखाई देने वाला। खुश शक्ल, खूबसूरत। 29वें बाब की पहली आयत में है फरिश्तगान। ये बाइबल मुकद्दस में 2 बार आता है। और वो भी ज़बूर की किताब में। फरिश्ता की जमा का फ़ारसी अंदाज है फरिश्तगान। फ़ारसी ज़ुबान में जमा बनाने के कई एक तरीके हैं, लेकिन
हे पर खत्म होने वाले जानदार इसम अगर उसकी जमा बनानी हो तो हे को हज़फ कर दिया जाता है और उसके बाद गान का इजाफा किया जाता है। फरिश्ता, फरिश्ता हे पे ख़त्म होता है और ये जानदार है, और जमा बनाने के लिए हे को ख़त्म करके आगे गान लगा देंगे तो ये जमा बन जाएगा। फरिश्तगान, इसकी मिसालें हैं बच्चगान, जैसे बच्चा है हे पे ख़त्म होता है तो ये बन जाएगा बच्चगान। शहजादा, जमा है शहजादगान। अमीरजादा, इसकी जमा है अमीरजादगान। परिंदा, परिंदगान। ख्वाजा, ख्वाजगान। और इस पर इस असूल का इतलाक तो नहीं होता, मगर फिर भी गान के साथ इसकी जमा बनाई जाती है। जैसे है बुजुर्ग, बुजुर्गान, बुजुर्गान दीन। तो ये है फरिश्तगान, इसका मतलब है फरिश्ते। ये फरिश्ता की फारसी अंदाज में जमा है, फरिश्तगान। 31वें ज़बूर की 11वीं आयत। आस बस अंगुश्त नुमा, ये ज़बूर की किताब में 2 बार आता है अंगुश्त नुमा। आस बस का मतलब है निहायत, बहुत ज्यादा। अंगुश्त का मतलब है उंगली, और अंगुश्तरी इसी से निकला है, इसका मतलब है अंगूठी। नुमा का मतलब है दिखाने वाला, और इसका मस्तर है नमूदन, दिखाना। अंगुश्त नुमा का मतलब है बदनाम, जिसकी तरफ उंगली उठाई जाए। रुस्वा, अंगुश्त नुमा, जिसकी तरफ उंगली उठाई जाए, जिसे बेइज्जत किया जाए, वो होता है अंगुश्त नुमा। 31वें ज़बूर की 17वीं आयत में लफ्ज आता है दुआ। इसका तलफ़ुज़ है दुआ, दुआ। और ये ज़बूर की किताब में 54 बार आता है। इसका मतलब है खुदा से मांगना, दरख्वास्त करना। इब्रानी ज़ुबान में दुआ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कारा। कारा का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, पढ़ना। यह है कारा का मतलब। अरबी ज़ुबान में इसका मादा है दाल आइन छोटी ए। इसका मतलब है पुकारना, बुलाना, मदद तलब करना। तो दुआ का मतलब हुआ मदद के लिए खुदा को बुलाना, पुकारना। अरबी जुबान के मादे से ये लफ्ज बनते हैं दाई, दावा, दावत, इस्तेदा, इल्तजा। इसका मतलब है ये अरबी जुबान के मादे से लफ्ज बनते हैं, जिससे हमारा उर्दू का लफ्ज बना है दुआ, पुकार, बुलावा। ये है इसका मतलब। 31वें ज़बूर की 18वीं आयत में आता है लफ्ज तकब्बुर, तकब्बुर। ये है इसका दुरुस्त तलफ़ुज़। और ज़बूर की किताब में ये कुल 6 बार आता है। इसका मतलब है अपने आप को अकबर यानी बड़ा जाहिर करना, गुमंड करना। अरबी जुबान में इसका मादा है काफ बे रे, और इसका मतलब है किसी से बड़ा होना। अकबर, तकबीर, कबीर, कुबरा, ये इसी खानदान के अल्फाज हैं। इब्रानियों के नाम खत में एक लफ्ज आता है किब्रिया, पहले बाब की 3री आयत में और 8वें बाब की पहली आयत में। किब्रिया, और वो भी इसी खानदान का लफ्ज है। इसका मतलब है अजमत वाला, बुजुर्ग। किब्रिया खुदा ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। किब्रिया, अजमत वाला, अजीम, बुलंद, बुजुर्ग। इसका तलफ़ुज़ है तकब्बुर।
34वें ज़बूर की 11वीं आयत में ये लफ्ज़ आता है खुदा तरसी। और ये ज़बूर की किताब में बस एक ही दफ़ा आया है। खुदा तरस बाइबल में आता है 9 बार, जैसे खुरूज 18वें बाब की 21वीं आयत में आया है खुदा तरस। खुदा तरसी का मतलब होता है खुदा से डरना, खुदा से खौफ खाना। तरसी का मस्तर है तरसीदन, इसका मतलब है डरना, खौफ खाना। दानियेल के सहीफे में 5वें बाब की 25वीं आयत में आता है तरसाओ लर्जा होना। तरसाओ लर्जा होना, ये है इसका तलफ़ुज़। इसका मतलब है डरना और कांपना। तरसा का मतलब होता है डरना, लर्जा का मतलब होता है कांपना। लर्जीदन इसका मस्तर है, इसका मतलब है कांपना। तरसाओ लर्जा होना, डरना और कांपना। 35वें ज़बूर की 8वीं आयत में है नागहां। इसका तलफ़ुज़ है नागहां। ज़बूर की किताब में ये लफ्ज़ 3 बार आता है। इसका मतलब है अचानक, एकदम, यकायक, नागहां। 35वें ज़बूर की 19वीं आयत में एक और मुरक्कब लफ्ज़ है चश्मक जनी करना। और पूरी बाइबल में ये एक दफ़ा आया है, चश्मक जनी करना। जो लफ्ज़ इब्रानी में यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, चश्मक जनी, उसका खूबसूरत तर्जमा है। इसका मतलब है आंख मारना, आंख से इशारा करना। जनी का मस्तर है जदन, जदन का मतलब है मारना। 36वें ज़बूर की 3री आयत में है दस्त बरदार होना। और ये ज़बूर की किताब में सिर्फ एक दफ़ा आता है। इसका मतलब है हाथ उठा लेना, छोड़ देना, अलग हो जाना, बाज आना। इसका मस्तर है, बरदार का मस्तर है बर्दाश्तन। इसका मतलब है उठाना, जैसे अलम बरदार, बार बरदार गाड़ी, नाज बरदार, सिला बरदार, डंडा बरदार जुलूस, सिपर बरदार। बर्दाश्त करना भी इसी से है। बरदार का मतलब है उठाने वाला। 38वें ज़बूर की 18वीं आयत में है गमगीन। और ये ज़बूर की किताब में 3 दफ़ा आता है। बाइबल में 44 बार आता है। इसका मतलब है गम और दुख से भरा हुआ। गीन शॉर्ट फॉर्म है आगीन की। आगीन का आगीन पूरा है और गीन उसका मुखफ़फ़ है। इसका मतलब है भरा हुआ। जैसे सुरमगीन आंखें, वो आंखें जो सुरमे से भरी हुई हैं। शर्मगीन, शर्म से भरा हुआ। अंदोहगीन, यसाया की किताब 9वें बाब की 1 आयत में आता है अंदोहगीन, दुख से भरा हुआ, गम से भरा हुआ। तो गमगीन का मतलब है गम और दुख से भरा हुआ। 37वें ज़बूर की 31वीं आयत में है रविश। इसका तलफ़ुज़ है रविश। और ये ज़बूर की किताब में 10 बार ये फ़र्क अंदाज में आया है। कभी रविश, कभी रविशों और कभी रवशें। ये तीनों अल्फाज ज़बूर की किताब में 10 बार आते हैं। रविश का मतलब होता है तौर तरीका, ढंग, चाल चलन, तर्ज अमल। ये है रविश। 37वें ज़बूर की 12वीं आयत में है रास्तबाज। रास्तबाज, रास्तबाजी, रास्तबाजों। ये अल्फाज ज़बूर की किताब में 14 बार आए हैं। इब्रानी ज़ुबान में रास्तबाज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सद्दीक। सद्दीक का मतलब है रास्तकार, नेकोकार, जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो, बे इल्ज़ाम।
یہ ہے راست باز۔